Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmiya Green School, Jhaleshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 7th Value Education. Okay, so in our previous video, we learned about this chapter. First, love is life. Okay, so we continue this chapter. So in this chapter, we learn about Konark Temple. Okay, and this in this temple, one family is discuss about this temple. Okay, so वी लर्न ओ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर मीन्स पापा क्या कह रहे हैं, ये पिक्चर बहुत सुंदर है और हमें ये जो कोणार्क सन टेम्पल है वहाँ जाना चाहिए घूमने के लिए. ओके, बट क्या होता है उनके घर में, वहाँ पर उन्हें बजट कम पड़ जाता है. मीन्स दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू गो अ ट्रिप. ओके, और मैनेज अ ट्रिप. सो उनके जो दोनों बच्चे होते हैं, डेट इज़ पीयूष एंड नीता. ओके, लुक एट वन अनदर, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं. देयर ही गो अगेन. दे थॉट दे न्यू डैट what he was going to say next, and he said it, how I wish I could take your mother on a visit to Konark. अब पापा क्या बोलते हैं, पापा उनके बोलते हैं कि मुझे ये मेरी ऐसी इच्छा है कि क्या मैं आपकी मम्मी को वहाँ पर ले जा सकता घुमाने के लिए. डिड यू नो इट इज़ यूनेस्को हेरिटेज साइट. ओके, अंडरस्टैंड. Piyush was 15-year-old and Neeta was 14-year-old. Okay, understand? So student, the child of two childs there are, that is 15-year-old and 14-year-old, and they decide ever since they could remember, Papa had been talking about taking Ma to Konark. But even though Konark wasn't far, there had never enough money to spare for the trip. Ma would just smile and change the subject. But the children know that she would love to go on a trip too. Okay, Piyush thought of a plan. Neeta, why don't we plan to send Papa and Ma on a trip to Konark? Have you gone mad? We don't have any money, said Neeta. But we can manage to make enough money if we take up summer jobs, said Piyush, and our holiday are beginning next week. Why don't we give it a try? क्यों ना हम समर जॉब करके हम वो मनी, इनफ मनी हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे. ओके, बट वॉट डू वी नो वॉट वी कैन वी डू, आस्क्ड नीता. दे थॉट अबाउट इट लॉन्ग एंड हार्ड. दे टॉक टू देयर टीचर. सो दोनों भाई बहन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि हमें मनी इकट्ठा करने के लिए क्या करना चाहिए. ओके, बट वी मैनेज, जो आकाश है वो बोलता है, वी मैनेज टू मेक इनफ मनी इफ़ वी टेक अप समर जॉब. सॉरी, said Piyush. Our holiday are beginning next week. Why don't we give it a try? But what do we know? What can we do? asked Neeta. Okay, they thought about it long and hard. वो क्या सोच रहे थे, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होगा. ओके, they talked to their teacher and to the parent of their closest friends and took their advice. Everyone promised to help Piyush. Piyush's best friend was Rajat. Rajat's father owned the pizza place in the shopping mall in their neighborhood. When they approached Rajat's father, he asked Piyush to come to work the next day for 2 months. Neeta also got a job
with an NGO run by a lady in the neighborhood. Okay, that summer both Piyush and Neeta worked. They told their parents that they had taken up summer jobs for fun. Their parents were a little surprised, but they never suspect that what the children were planning. पेरेंट्स सरप्राइज तो हुए, बट उन्हें इतना आइडिया नहीं था कि बच्चे क्या प्लान कर रहे हैं. ओके, एट द एंड ऑफ 2 months पीयूष एंड नीता काउंटेड देयर अर्निंग. वुड इट बी इनफ? दे वेर anxious to their delight. It was just sufficient for a package tour to Konark for 2 people on a luxury bus. Can you imagine the expression of Papa's face when he opened the envelope and found the tickets? Can you imagine the excitement and the explanation and the hues and hug and the tear of joy? पापा की आंखों में क्या थे? खुशी के आंसू थे, और उन्होंने अपने बच्चे को क्या किया? गले लगा लिया. कैन यू इमेजिन what beautiful photograph Papa and Ma took in Konark? You must visit Piyush and Neeta to find out how love can make dream come true. Okay, so what we learn in this story? Piyush and Neeta, 2 children are there, and they think about his mother and father. Okay, उनकी खुशी के बारे में, उनको किस टाइप से वो खुश कर सकें, किस टाइप से, बिकॉज पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचते हैं. सो पीयूष एंड नीता जो थोड़े one is 14 year old and one is 15 year old. Okay, both are thinking about his mothers and father, how to become his mother and father happy. Okay, and when this little surprise come to his father, his eyes, he found the ticket. So here eyes is, उनकी आइस में कैसे आंसू थे? जॉय के, मीन्स खुशी के आंसू थे. ओके, और अगर आप इसे इमेजिन करना चाहें, अगर आप अपने मम्मी पापा को छोटा सा कुछ गिफ्ट ला कर देते हैं, तो उनकी आंखों में जो खुशी होती है वो देख कर के ही आपको खुशी मिलती है. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ अवर स्टोरी, टुडेज स्टोरी, दैट इज़ लव इज़ लाइफ. एंड quiz, quick quiz. What is the quiz? Would you give up something that is precious to you for the sake of a brother, a sister, or a friend? Do you expect them to give up something for you? Would you give something that is precious to you, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, you for the sake of your brother, a sister, or a friend? Do you expect them to give up something for you? क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको भी कुछ इस टाइप से सरप्राइज़ दें? सपोज द चिल्ड्रन in the story had not done these for their parent, would the parent love them less? क्या उनके पेरेंट्स का प्यार उनके लिए कम हो जाता? पेरेंट्स का प्यार कभी अपने बच्चों के लिए कम नहीं होता है. ओके, अगर वो उन्होंने किया, अगर वो उन्होंने जॉब किया अपने पेरेंट्स की हैप्पीनेस के लिए, बट पेरेंट्स वो किया इसलिए उन्हें लव नहीं कर रहे थे. पेरेंट्स का लव जो रहता है वो कैसा रहता है बेटा? वो हमेशा निश्चल होता है. मीन्स पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव करते हैं. ओके, सपोज द पेरेंट्स हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गिफ्ट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, हाउ वुड द चिल्ड्रन हैव फेल्ट? अगर पेरेंट्स उस गिफ्ट को रिफ्यूज़ कर देते तो चिल्ड्रन क्या सोचते, क्या होता चिल्ड्रन का एटीट्यूड? बिकॉज उन्होंने कितनी मेहनत करी, 2 months तक उन्होंने. सो व्हाट दिस स्टोरी टेल अस? हमें दूसरों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए. ओके, अगर हम दूसरों के बारे में, अगर हम अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में
सोचते हैं और वो हमारे बारे में सोचते हैं, अगर वो हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो यू हैव टू एंड यू हैव एक्सेप्ट देम एंड गिव सेम। आपको उन्हें भी क्या देना चाहिए, उसी टाइप से कुछ सरप्राइज़ दे करके उन्हें खुश करना चाहिए। एंड वॉट वी अंडरस्टैंड, लेट अस सी what the story tells us about the qualities that flow from love. Love make us more understanding and caring. Okay, Piyush and Neeta understood how much a visit to Konark would mean to their parents. Okay, love, अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसकी केयर करना, उसे अंडरस्टैंडिंग करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, लव मेक अस अनसेल्फिश। पीयूष एंड नीता वेयर willing to give up their holiday fun and take up job instead. See, वो बच्चे चाहते तो वो क्या कर सकते थे, वो जॉब करने की जगह पर अपना हॉलीडे जॉयफुल बना सकते थे, खेलने में बिता सकते थे। ओके, सो लव, अगर आपको अपने पेरेंट्स से प्यार है, लव मेक अस अनसेल्फिश। पीयूष एंड नीता वेयर विलिंग टू गिव अप देयर हॉलीडे फन एंड टेक अप जॉब्स इंस्टीड। उसकी जगह पर उन्होंने क्या लिया, जॉब करना ज़्यादा अच्छा समझा। ओके, लव मेक अस लुक फॉर वे टू ओवरकम obstacle for the sake of the people we love. Piyush and Neeta looked for way to make their parents' dream trip come true. Okay, उन्होंने क्या किया, मीन्स हम जितनी भी बाधाएं हमारे सामने आ जाएं, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, कम करके उसको, उन बाधाओं को दूर करके आगे निकल सकते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए। पीयूष एंड नीता लुक फॉर वे टू मेक देयर पेरेंट्स ड्रीम ट्रिप कम्स ट्रू। ओके, लव मेक अस एक्सेप्ट अ लविंग जेस्चर फ्रॉम अदर। द पेरेंट्स फेल्ट द लव बिहाइंड द चिल्ड्रन जेस्चर, दैट इज़ वाई इंस्टेड ऑफ protesting and refusing to take their money, they accept gracefully. Everyone was happy and the bond of love were strengthened. उससे क्या हुआ, सी, अगर वो पेरेंट्स उसे रिफ्यूज़ कर देते तो दोनों बच्चों को क्या लगता, बहुत बुरा लगता। ओके, पेरेंट्स ने क्या किया, उसे एक्सेप्ट किया ग्रेसफुली। सो हर एक जो बच्चों ने किया उन्हें बड़ी खुशी हुई कि हमने जो किया पेरेंट्स के लिए, उससे पेरेंट्स खुश हुए। पेरेंट्स ने उसे ले करके ग्रेसफुली ले करके उसे इंजॉय किया एंड एवरीवन वाज हैप्पी एंड द बॉन्ड ऑफ लव वेयर स्ट्रेंथेंड। ओके, नाउ लव डज नॉट कम विथ स्ट्रिंग अटैच्ड, it does not come with any expectation of gratitude or reward. It is given and accepted freely. आपको अगर आपसे कोई प्यार कर रहा है तो वो आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप भी वो करिए, कोई एक्सेप्टेशन नहीं है, कोई ग्रेटिट्यूड, कोई रिवॉर्ड के लिए नहीं किया जा रहा। पेरेंट्स जो आपसे प्यार करते हैं वो अनकंडीशनल होता है। इट इज़ गिवन एंड एक्सेप्ट फ्रीली, वो क्या होता है, हमेशा फ्रीली एक्सेप्टेड होता है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ देयर आर मेनी वे टू एक्सप्रेस लव। यू मे गिव योर फ्रेंड अ गिफ्ट, यू मे गिव योर पेरेंट्स अ हग, यू मे गिव योर पेट अ ट्रीट, यू मे राइट अ स्पेशल पोएम फॉर योर टीचर। और आप किसी से अगर लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे वे होते हैं। आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, फ्रेंड को, आप अपने पेरेंट्स को हग करके भी क्या कर सकते हैं, अपना लव रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू मे गिव यू अ पेट अ ट्रीट, अगर आपके घर में कोई पेट है तो आप उसे क्या दे सकते हैं, कोई ट्रीट दे सकते हैं। ओके, यू मे राइट अ स्पेशल पोएम फॉर योर टीचर, अगर आपको टीचर को देना है तो आप उनके लिए पोएम लिख सकते हैं। ओके,
You warm smile and company will show your grandparents that you love them. और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या होता है आपका जो उनके साथ में कंपनी देना होता है, आपकी स्माइल जो होती है, आपका उनके साथ बैठना ही उनके लिए सबसे बड़ा क्या है, गिफ्ट है। ओके अगर आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, आप जो टाइम स्पेंड करते हैं वो बिना इग्नोरेंस के करते हैं, मीन्स आप उस टाइम पर अपना जो आपका माइंड है वो डाइवर्ट नहीं करते हैं, माइंड को आपका कहाँ रखते हैं, ओनली आपके ग्रैंड पेरेंट्स पे रखते हैं, टीवी नहीं, मोबाइल नहीं। उस टाइम जिस टाइम आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं उस टाइम आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, फैमिली पर होना चाहिए ओनली। ओके ना आपका ध्यान टीवी पर होना चाहिए, ना मोबाइल पर होना चाहिए। और ग्रैंड पेरेंट्स को क्या चाहिए, उनको आपका खाली कंपनी चाहिए। ओके अंडरस्टैंड। लव इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड ऑफ अदर टूवर्ड्स यू। दूसरों का आपके बारे में सोचने का तरीका भी, अगर आप हर एक से प्यार से मिलते हैं, हर एक से प्यार से बात करते हैं तो क्या होता है, आपसे मिलने का तरीका भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आपको देखने का नज़रिया लोगों का क्या होता है, चेंज होता है। इट इज़ ईजी टू लव दोज हु लव यू। उनको लव करना आपके लिए बहुत ईजी है जो आपसे लव करते हैं। ओके जैसे पेरेंट्स, सिस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ओके आपके फ्रेंड्स। द चैलेंज इज़ टू केयर इवन फॉर दोज हु डू नॉट लाइक यू। आपके लिए चैलेंज क्या हो सकता है, जो आपको बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, आप उनसे किस टाइप से बिहेव करते हैं। बाय लविंग देम यू कैन इवन चेंज देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स यू। ओके लव इज़ टू लाइफ what the sun is to the earth. ओके अंडरस्टैंड। लव क्या है, लव ही लाइफ है। जो सन है वो हम जो अर्थ को देता है, डेट इज़ ऑल्सो लव। ओके अंडरस्टैंड। नाउ सो महात्मा गांधी ने भी क्या कहा है, वेन एवर यू आर कन्फ्रंटेड विथ एन अपोनेंट conquer him with love। ओके मीन्स अगर कोई आपका विरोधी है और वो कोई इस टाइप का व्यक्ति है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तो आप उसे कैसे जीत सकते हो, लव से। ओके अंडरस्टैंड। let this love be expressed to your people but also to your opponent, means जो आपको पसंद नहीं करता, even discriminating on you and abusing the power they have seized। जो आपको प्यार नहीं करते, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए भी आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है लव। द लव टू ऑल ह्यूमन बीइंग एज वी आर all the same at the end of the day, all simply and so desperately human in all our right and wrong, deed and thought। okay understand। so what do you think Gandhi ji meant when he said conquer him with love? okay you have to search this thing, okay understand, and search this and tell me about these some lines। we pray for those we love, so what is the Buddhist prayer using us to do? what is the Buddhist prayer? may my enemy be happy, may my enemies be free, may my enemies be peaceful। okay अंडरस्टैंड। सो बुद्धिस्ट की प्रेयर क्या होती है, मेरे जो एनिमी हैं वो भी खुश रहें, वो भी फ्री रहें और वो भी पीसफुल रहें। ओके अंडरस्टैंड। नाउ आई कैन नॉट रिजॉइस इन द डेथ ऑफ समवन कॉल्ड द एनिमी। ओके सो these are some people
who tell about love is life. Okay, understand? Now you can learn these things. Okay, today we have completed our chapter here. It is sometimes so complete this chapter. Okay, understand? एंड जो आपको प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, सो यू हैव टू लव देम. ओके, अंडरस्टैंड? उनके बारे में जैसे वो आपकी केयर करते हैं, सो यू हैव टू केयर देम. ओके, अंडरस्टैंड? हैव अ गुड डे.